Hi guys, good evening. Today I'm going to start your paper 2 Australia Foundation Fundamental of Accounting. So before I start, let me introduce myself to introduce. So my name is Asi. I am a qualified cost accountant having 5 years of corporate experience and 5 years of teaching professional experience also. So I'm providing accounting topics for plus 2 first year, plus 2 second year, and I have foundation and inter students. Apart from that, I'm doing diploma in IFRS SEC London. So today I'm going to give you the topic regarding the overall overview of what the contents is there in financial accounts. What the topic going to be covered? What's the approximate proportion of marking coming in the exam, and what percentage of marking is given? And in your financial accounts, also introduce the accounting topic. Two part is there. One is accounts part and one is costing part. So I can also explain you how much percentage of accounts part will come in the exam. What is the percentage of costing parts will come in the exams? Okay. So let's start for the classes. And before I start it, let me give you some suggestions. Those students who come with plus 2 science background, and those students also we can feel they are little bit weak in accounts paper, they can go to our app like commercial app. You can find in app store also. You can download and take every the classes in free of cost. Fundamental of accounting, there we providing for the students we can weak in accounts and plus 2 science background students. Why I'm saying these things? Because in ISW Foundation, I'm not going to teach you the fundamental clearly. I'm only cover those topics which are related to exam point of view with knowledge purpose. But we can't go back and teach the fundamentals again like plus 2 first year students. Okay, I hope all are understanding these things. And before that, let me say some things. Like we will start today. First, I will explain the topic wise. What is the percentage coming? Exam point of view, how much percent is coming in the exam? What type of questions coming in the exam? How will you attend the questions? And how to pass the exams? Then, first of all, my all dear students, welcome to our family. Like it's a CMA family, and I wish all the best that you as soon as you can pass and you qualify the cost account of India. So dear students, let me start the things today. So in the fundamental of accounting, so let me write, this is accounts and this is costings. Okay, so 2% is there in your books. So in this 2%, this is coming 80% and your costing is come under 20%. Okay, so this two part will be covered. So here in the 80% mark and in this 20% mark, I will cover each and every bit, and I will tell you how my teaching style and how to pass the exams. What is the percentage coming? What is the question type coming? For the what kind of question? Whether it's subjective, objective type of question, what type of objective coming? That and all I can explain you in these things. Okay. So first I converted this in accounts for 80% and costing for 20%. Let me explain what is the topic covered under 80%. Here you can learn the basics of accounting. Then you can learn concept convention of accounting, rectification of errors. You can learn journal, ledger, trial balance. You can learn opening entry, closing entry, adjustment entries, and you can learn double entry system, subsidiary books, and you can also learn depreciations. Okay, so this is the first things will come in, and next part will come in your bill of exchange, consignment, joint venture, and ended with your final account. The final account related to both profitable organization and non-profitable organization. Okay, so my dear students, I'm also in my web coaching. I'll tell you how I'll provide the coaching. So basically, I classify total classes into three categories.
that is category A, category B, and category C. And I also given you the sequence of coachings. So in which sequence I can provide you the details of coachings. Okay. So अभी ये अकाउंट्स पार्ट है, आपका कॉस्टिंग पार्ट में जो आएगा ये आपका आएगा फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट. दिस टू पार्ट ओनली बेसिकली कमिंग in the costing parts. So don't worry, I'll cover both the topics. So let me start one by one. First, once accounts and costing part will cover, I'll tell you what is the percentage of exam point of view will coming, right? So here this total should be 100%, right? This total should be 100%, and in this 100%, you can say 60% and 40%. Okay, so your 60% coming sub objective questions, okay, and your 40% coming subjective questions. So what is objective questions and what is subjective questions, that also I can tell you. What type of questions is cover under the subjective part, what type of question also cover under the objective parts. Okay, so let me first cover the objective part, then I will go for the subjective part. Okay, so I can give you the objective part first. Okay, let me write the objective part. Objective part. Okay, so in objective part, how will you treat this objective? Let me explain first this objective questions. So here there is three categories there in objective. Okay, one is MCQ. So what is MCQ? It's multiple choice questions. So multiple choice questions. Next one is your true false. Okay, and next one is your less the following. Okay, so here how will you treat this type of things? Let me explain one by one. In MCQ, you can go and take this thing like multiple choice question. So one question given, 4 options there, you can choose any one option for the same. But keep in mind one thing, same thing for true or false, and for match the following, two things. One is column A, column B, you should match column A with column B. Okay, so one thing you kept in mind that you just not given only choose the options given in the question right answer. No, instead of you choose, you should give the reason for choosing this. If you choose one answer, why? What is the reason behind the choosing that answer? And if you choose, like let's say true and false, if you choose true and false, you can say what's the reason of true, what's the reason of false also. So my dear students, अभी आप लोगों को मैं जो बताया हूँ ये ऐसे है कि हमारा प्लस टू की तरह नहीं है. हम लोग इसको क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी आंसर हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, उन सब का एक रीजन होना चाहिए. Why giving that answer as a right answer? Why giving that true and false? That you need to know this things. Okay. So one more thing I can tell you. If I let's say true false, if you give it true, you say the answer true and give the reason inside of the answers. That is helpful for you to know in the exam point of view and the exam perspective. The examiner should know the reasons of why it's giving the answer and shouldn't know the real thing behind the giving the answers. Okay, so I hope you understand the things. What is person MCQ, true, false, and so this part will come in your how much percentage? This is your 60%. So all three is 60%. Okay, and the 40% subjective. So let me write it here.
subjective part. Here only two types is coming. One is theoretical, one is practical. Okay, so these two type of question come. One more thing you kept in mind, this is might becomes 2 mark or 1 mark. Like I am saying, like this question 60 mark. So for MCQ, if you given MCQ the region of answer to and give the region means description for the answer, you can get easily 2 marks. For this thing, for theoretical part, it might become like, and practical it will be 4 or 7, it will be 6 or 8 marks. Okay, so what is 4 or 7 or 6 or 8? Minimum you can get 4 mark, maximum 7 mark for theory writing. If you do practical problem, you can get 6 mark minimum and maximum 8 mark question in the exam. You can assume this thing. It won't like same it will come, it might be changes. Main thing was 60 mark would be the objective and 40 mark would be the subjective. So here the main important thing you should know in this area was that how you don't think that you will take a book and buy at all the bit questions and went for the exam will pass. No way will pass. You should know each and every topic of accounts in depth. You should know around the region. You should get proper knowledge of accounting so that you can attend. Because it's not like you're close to, you can go and easily you can tick, you can get the mark. No, it's not like this way. One more thing, students. In subjective, some of the, I know, not covering the theory part more important. They given more depth in the objective part. Then practical question, the foundation is over. For in my classes, you can get the theory papers also clarify. I will give full coaching in full cover of theory paper. Why I am saying this thing? कभी कभी आपका ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक प्रॉब्लम होगा, दो थ्योरी होगा, या दो थ्योरी होगा, एक प्रॉब्लम होगा, एक वन प्रॉब्लम वन थ्योरी करेंगे. तो इसमें क्या होगा, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके गए होंगे तो आपका थ्योरी मार्क मिस हो जाएगा. तो आप इसी क्वेश्चन का 4 या 7 मार्क आप गवा चुके हो उसमें, तो आपका पास होने का चांसेस जो है थोड़ा कम हो जाएगा. इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करके हम लोग जाएंगे. एमसीक्यू ये वाला पार्ट पूरा कवर होगा, फिर हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिकल भी हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. और उसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वे ऑफ कोचिंग क्या होगा, मेरा सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, किस किस टॉपिक में ज्यादा कवर करूंगा और कौन से एरिया में ज्यादा कवर. इसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा ये 80 मार्क में कौन सा सेक्शन कितने का मार्क आ रहा है. 20 मार्क जो है वही आएगा. ठीक है. सो मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, बस एक बार लिख लीजिए, फिर मैं अगले पार्ट में आपको जाता हूँ. ठीक है. ठीक है. फिर मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ एक बार, फिर आप लोग लिखूंगा. ठीक है. तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे आपका दूसरा पार्ट एग्जाम. ठीक है. तो चलिए फिर से शुरू करते हैं. बाकी जो टॉपिक आपका रहा है. ठीक है. सो हम लोग शुरू करेंगे अभी फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का. फर्स्ट है आपका अकाउंट्स का. ठीक है. जो अकाउंट्स है वो कितने मार्क का आ रहा है, 80 मार्क्स का. ठीक है. जो 80 मार्क्स आ रहे हैं वो 80 मार्क में आपका क्या क्या आएगा, मैं पहले बताता हूँ. एक है आपका
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो एंड दूसरा है आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन, ओके। फिर तीसरा है आपका फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ये जो 80 मार्क है, ये वाला पार्ट आपको आएगा 35 मार्क का, ये वाला पार्ट आपका आएगा 20 मार्क का, ये वाला पार्ट आपका आएगा 25 मार्क का, ठीक है। सो इन सब में सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ये जो 35, 20, 25 मार्क है, आप लोग को सबका सब पढ़ते जाना है, कोई भी यू कांट एक्सक्लूड एनीथिंग फ्रॉम योर सिलेबस, ओके। सो फिर मैं बताऊंगा आपका इसमें क्या क्या आ रहा है, स्पेशल ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ रहा है, फिर फाइनल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं फिर से हम। बस अब ये तीनों पता चल गया कौन सा परसेंटेज कितना आ रहा है, बेसिस अकाउंटिंग 35 मार्क, स्पेशल ट्रांजैक्शन 20 मार्क और फाइनल अकाउंट्स 25 मार्क्स हो गया। 35, 20, 55, ये 25 आपका 80 मार्क्स। सो फिर मैं बताऊंगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक कवर होगा, स्पेशल ट्रांजैक्शन में क्या क्या टॉपिक कवर होगा, फाइनल अकाउंट में क्या क्या टॉपिक कवर होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या आपको प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के सिलेबस बुक में जो जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मेरा सीक्वेंस बताऊंगा जो कि आपको भी इजी होगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए, और जो जो कॉन्सेप्ट है वो सब इंटरलिंक होगा एक दूसरे के, तो इसको बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट को समझने में। तो मैं इसमें एक ही चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है और इसमें आपका एक टॉपिक आएगा डेप्रिसिएशन, तो मैं डेप्रिसिएशन को इसमें कवर नहीं करता हूँ, उसको मैं करता हूँ स्पेशल ट्रांजेक्शन में। और एक आपका आएगा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, उस सबको मैं इसमें कवर नहीं करता हूँ, उस सबको मैं करता हूँ फाइनल अकाउंट में। सो अभी पूछते थे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बात यह है जब भी मैं आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा उसमें आपका कॉन्सेप्ट कन्वेंशन आएगा, जोड़ना, ट्रायल बैलेंस सारा आएगा, पर डेप्रिसिएशन में इन सब कोई लिंक नहीं है। मतलब आप सिर्फ जोड़ना पता है तो आप डेप्रिसिएशन कर पाएंगे नहीं, कोई भी डेप्रिसिएशन कर सकता है। इसलिए मैं इसको स्पेशल, क्योंकि इसको इस सबको स्पेशल ट्रांजेक्शन क्यों कहते हैं, इसमें आपका अकाउंट्स का नहीं, वो ट्रांजेक्शन आपने स्पेशलिस्ट है जो कि वन ऑफ अकाउंट्स है, पर कोई भी उसको कर सकता है, बस कॉन्सेप्ट जानना है उसको। एज ए नॉट सिर्फ प्लस टू फर्स्ट सेकंड, एज ए साइंस स्टूडेंट आल्सो कम he or she can do the special transition classes easily, okay. But basics there is a problem for who is little bit weak in accounts or some background in science, but special transition anyone can do. Then final account same thing, so that's why I will change the sequences as per way. So मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि जब भी मैं बेसिक पढ़ाऊंगा इसमें आपका सारा अकाउंट्स पर कन्वर्ट होगा और सारा कवर होगा इजीली, उसमें आपका कुछ भी स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए मैं स्पेशल ट्रांजेक्शन अलग से कर रहा हूँ, ये बेसिक को अलग से कर रहा हूँ और फाइनल अकाउंट को मैं कर। हाँ, और एक चीज मैं आपको बोला कि जब एडजस्टमेंट अकाउंट और ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री सबको मैं इसमें क्यों डालता हूँ, क्योंकि आगे मैं जब को पढ़ाऊंगा वंस और ट्रायल बैलेंस ओवर, जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा, वंस ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद हमको हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, फाइनल अकाउंट में आपका आता है एक चीज जो है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, जो कि प्रिपरेशन करते हैं, एंड बैलेंस शीट जिसको कहते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि प्रिपरेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉफिट मोटिव, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, और हम लोग अलग तरह से बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट टू अर्न प्रॉफिट, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल यूज द final accounts, trading PL account and balance sheets, or those organizations will build for non-for-profit or non-for-profit organization, mainly the organization in the society who is providing service to us, who are providing, let's say the example of teaching line, best example colleges, schools, institutions, medical staff means not government medicals, they different, they are preparing, जो अगर किसी का क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक,
वो भी प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट में जा रहा है, उनको ऐसा दिक्कत है क्योंकि डॉक्टर के लिए प्रोफेशन है, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो उन लोग भी सर्विस देते हैं वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। सो जितना भी एनजीओ है वो सब आते हैं नॉन प्रॉफिट। उन लोगों के लिए क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि जब हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे सो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन मोटिव हमारा है प्रॉफिट है, तो कितना बिजनेस का प्रॉफिट है उस सब का हमको जानना है। और हम लोग जब भी नॉन प्रॉफिट करते उसमें हम प्रॉफिट नहीं निकलेंगे, उसमें हम बस कंपेरिजन करेंगे हमारा इनकम कितना हुआ है, उस हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर। इनकम मींस इट्स नॉट सेलिंग, इट्स लाइक रिसिप्ट। हम लोग कुछ बाहर से कोई डोनेशन दिया, कुछ रिसिप्ट किए, उसी से हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद हमारा ईयर एंड में कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट रहा, वो लोग हम बस कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। बट जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे हम लोग उसमें पहले हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है या ग्रॉस लॉस क्या है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चल गया, फिर हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें हम देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है। मैं आपको बताऊंगा नेट प्रॉफिट कैसा आता है, नेट लॉस कैसा आता है, सारा डिटेल वो सब बाद में डिस्कस, बस मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर बताता हूँ क्या क्या टॉपिक इसमें आ रहा है। फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट क्यों प्रिपरेशन होता है, वो एक है स्टेटमेंट, वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारा जितना भी काम हुआ ऑर्गेनाइजेशन में ईयर एंड में, उसका पोजीशन कैसे, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल, उसका फिनेंशियल पोजीशन कैसा है और उसका कैसे कैसे करते हैं वो सब हम लोग बताएंगे बैलेंस शीट में। तो ये आपका 3 टॉपिक है। पहले मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक के अंदर 2 3 4 चीज। पहले हम लोग चलते हैं बेसिक ऑफ अकाउंट, मैं बताऊंगा आपका क्या क्या टॉपिक में कवर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल ट्रांजेक्शन, फिर बताऊंगा फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो चलो ये है आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला है आपका कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, एंड हम उसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है। सो हम लोग इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, सो इसका मेन कारण ये है कि आप लोग को पता है जो भी हम लोग काम करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का होगा, तो इस पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हम लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक उसी हिसाब से ही अकाउंट्स का जिस काम करेंगे, और मैं आपको जो टर्म बताऊंगा उसका टर्म का यूज किया है, उसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे क्यों लिए, और सबके लिए भी मैं ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशन और प्रिंसिपल में, तो ये सब ये हमको ये बताता है कि रूल्स रेगुलेशन मेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंक्लूडिंग द एजम्पशंस। तो हम लोग इसमें एजम्पशन भी लेते हैं, क्या क्या एजम्पशन आएगा, ठीक है। तो ये आता है कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल। मैं आपको बताऊंगा कितना कॉन्सेप्ट है, कितने कन्वेंशन है, प्रिंसिपल क्या है, उसका रूल्स क्या है, वो लोग क्यों आए हैं, उसके यूज क्या है, कॉन्सेप्ट। एक बार ध्यान से रखिए, जो चीज हम लोग करेंगे इसके बाद वो सब बेस होगा कॉन्सेप्ट में, कन्वेंशन में, प्रिंसिपल में। और मैं आपसे ये चाहूंगा जब भी मैं आपको ये सब टॉपिक कवर करूंगा आप पूरा याद रखना ये टॉपिक को, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट्स we can't answer simply that this is, no, we should answer this is because of, as a based on this concept, as a based on this convention, or as a based on this principle. It will be grow from your side that you are a real professional student. So I want each and everyone to know this concept principle very well, and you should learn. Don't want to buy it, you should learn each and everything. I'll tell you how to know this thing and teach these things. Okay, so next part will be your कैपिटल स्लैश रेवेन्यू, ये दोनों में आपका आएगा एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ये सब क्या होता है। सो नॉर्मल टर्म जो आता है आपका ये ऐसा आता है कि आप लोग को अगर कोई हेवी एक्सपेंडिचर होता है जो कि 1 साल से ज्यादा होता है उसका हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
और रेवेन्यू जो कि 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका हमको वैल्यू मिल जाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, उसका शुरुआत कैसे हुआ, उसका हम रेवेन्यू क्यों ट्रीटमेंट करते हैं, उसका हम कैपिटल क्यों ट्रीटमेंट करते हैं, किन किन केस में नेचर रेवेन्यू होगा पर उसका हम कैपिटल ट्रीटमेंट करेंगे। और एक चीज इसमें कंसेप्ट है जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम वो भी आपको बताऊंगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका हम डेफर्ड क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या है, ये डिटेल सारा जब मैं टॉपिक कवर करूंगा आपको इस सब में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका सी में आएगा डबल एंट्री सिस्टम। और आएगा आपका सब्सिडरी बुक। ठीक है, इस डबल एंट्री सिस्टम में मैं और भी पार्ट आपको कवर करूंगा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में कभी कभी बिट क्वेश्चन आ रहा है, सो ये भी मैं आपके कवर करूंगा। ठीक है, सो मैं क्या क्या बताता हूँ। सो डबल एंट्री सिस्टम मींस every transaction in two fold aspect, one is debit, one is credit. Yes, if you know the reason why it's debit, why credit, you can go and check the fundamental classes which is available in the app. You can download it, you can check. And because why I'm saying I'll go directly into the concepts, I'll directly go down into system, I put the debit credit, I'll give the answers. I won't give the reason and I won't go in detail for these things like for a fundamental students. So please be careful. Those students who are still they think they are little bit weak in accounts, they can easily go download the app and take the lectures of fundamental of accounting. It's around 17 classes. Those are free of cost. So you know sure you can go and check. Also those who are coming from plus to science background, they also can go and check the details and study. They can get the lectures. Okay. So dear students, ये 3 हो गया। आपका जो चौथा है वो आपका है मेन पार्ट आ गया आगे टॉपिक में जो है जर्नल, लेडजर और है टीबी जो हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये 3 फिर ये मैं एक चीज पूछ सॉरी आपका सब्सिडी बुक नहीं बताया। तो सब्सिडी बुक क्या होता है, ये सब के बाद अदर बुक्स जो कि कैश ट्रांजेक्शन होता है, कैश के बाद कुछ हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करते हैं लाइक सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सब जाके बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब जाके बाकी जो अदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा वो सब आएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। वो सब को बोलते हैं हम लोग सब्सिडरी बुक। मतलब जो मेन लेडजर होता है जिसको प्रैक्टिकल में बोलते हैं मास्टर लेडजर, जो सब लेडजर होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब लेडजर। तो जैसे हम मास्टर लेडजर का डाटा लेते हैं फिर कंपेयर करके सब लेडजर को लाते हैं, फिर दोनों को देखते हैं कि क्या वेरिएंस आया, रीजन क्या है, वो लोग हम लोग फाइनल जब लेडजर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोला जर्नल लाइन लेडजर ट्रायल बैलेंस। तो जब हम डबल एंट्री पता चल गया डबल एंट्री कैसा होता है, कैसे डेबिट क्रेडिट, इसमें गोल्डन रूल, ये सब बताऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग जर्नल करेंगे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जैसे जर्नलाइज हो गया उसके बाद लेडजर प्रिपेयर करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट कर सकते हैं, पर मैं आपको ट्रायल बैलेंस में रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, अगर मैं आपको एक साथ जर्नल लेडजर फाइनल बढ़ाऊंगा तो ये दिमाग में इतना नहीं जाएगा जितना ब्रेकअप करके बढ़ाऊंगा। तो वंस you all are practice and journal ledger trial balance very well and all are master in the trial balance, then it will easy for all of you to grab once it is the final account to all of them. Okay, so I hope you understand. So please, if you want, you can note down. I'm giving 1 minute for this thing, then I'll tell you what the next details.
सॉरी उतना गंदा दिख रहा था बोर्ड, इसमें मैं साफ कर दिया। हो गया। मैं अभी दूसरी चीज में चलता हूँ। आपका 4 कवर हो गया, फिर इसमें 2 रहा, 2 टॉपिक, फिर मैं जाऊंगा दूसरा पार्ट में। ठीक है, चलो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कर लो। सो ये 4 के बाद आपका आएगा 5वां, जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, फिर आएगा आपका, मैं आपके बुक के हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा मैंने ये किया। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इसमें आपका 2 ही मेथड है, एक है डबल ड्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक है एसएलएम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, और आपका आएगा दूसरा ओपनिंग एंट्री, नेक्स्ट आपका आएगा क्लोजिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, सो अभी ये तीनों में क्या क्या हुआ, पहले मैं आपको बताया कंसर्ट कन्वेंशन, फिर आपको बताया रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, फिर मैंने आपको बताया जो डबल एंट्री सिस्टम है सब्सिडी टू की जो है, फिर मैंने आपको बताया जर्नल लेजर ट्राई बैलेंस, फिर मैं आपको गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। इसमें क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब लोग ह्यूमन, हमारे तरफ से भी मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिस्टेक हुआ है उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम कुछ भी एरर कर रहे हैं उसका हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, एंट्री डाल के, या उसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, या कुछ डेबिट क्रेडिट उल्टा हुआ है, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट उसको ठीक करेंगे, उस सबको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। सो इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ, इसको एंट्री नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं एरर्स। सॉरी माय मिस्टेक, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो हम इसको एरर क्यों बोलते हैं कि जो भी मिस्टेक, जो भी फॉल्ट होता है दूसरी सबके एरर बोलते हैं। मैं जब भी आपको रेक्टिफिकेशन एरर बताऊंगा उसमें आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ एरर, किस किस एरर को कौन से टाइप को बोलते हैं, लाइक कुछ एंट्री डाले, डेबिट हुआ है, क्रेडिट भूल गए, या हमने पूरा भूल गया, ये ऐसा होता है हमने ज्यादा डेबिट कर दिए और कम क्रेडिट कर दिए, ये ऐसा होता है किस ट्रांजेक्शन हमको एसेट लायबिलिटी करना है उसका हम एक्सपेंस डाल दिया, किस ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस हम एसेट लायबिलिटी डाल दिया, जिसको कि हमको प्रिंसिपल का कमी है उसमें, वो सब एरर इसमें आएगा। हाँ, उस सब को हमको रेक्टिफाइड करना है, इधर जर्नल एंट्री डाल के और इधर सिंगल एंट्री। इसमें बहुत सिंगल एंट्री एरर आएगा, डबल एंट्री एरर आ सकता है। जब भी मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल एरर के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर, क्या क्या एरर होता है, किसमें कौन से एरिया है, सारा डिटेल बताऊंगा। फिर आपका ये जो डेप्रिसिएशन है एंड ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये दो जो है ये आपका बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में 35 मार्क के अंदर ये 3 आता है। पर मेरे हिसाब से मैं क्या किया हूँ, इन दोनों को, एक को मैंने लिया हूँ अदर ग्रुप में और एक को लिया अदर ग्रुप में, मतलब मैं मेरा जो स्टडी है सीक्वेंस वो मैंने 3 पार्ट में कवर किया हूँ। एक है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका ये आएगा 6 आएगा, और ये 2 जो आएगा ये आएगा सेक्शन बी में, एक डेप्रिसिएशन आएगा, इसमें लिखा जब मैं बताऊँ तब तक जाएगा, ये आएगा आपका सेक्शन बी में, और ये वाला जो आएगा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब आपका आएगा सेक्शन सी में। ठीक है, सो ये भी आप लिख लीजिए, बट फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेशल ट्रांजेक्शन, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कवर करेंगे, एक बार लिख लीजिए इसको।
हो गया। और एक चीज इसमें है जो कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आएगा, वो है आपका BRS। इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्या होता है? ये सब हमारा कैश है। कभी हमारा ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा? कैश में होगा। तो हम कैश कहाँ पर रखेंगे? बैंक में डिपॉजिट करेंगे। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं, आप सबको पता होगा, नहीं तो एक बार जाके देखिए, आपको पासबुक मिलता है। जब भी आप लोग कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, आप लोग का पासबुक अपडेट होता है। अभी तो ज्यादा से ज्यादा आपका फोन में आप है, उसमें आपको मिल जाता है डिटेल स्टेटमेंट, डिटेल क्या डेबिट क्या क्रेडिट सारा मिल जाएगा। पर नॉर्मल पहले जो ज्यादा पासबुक या फेसबुक हम लोग कंपेयर करके ये कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा रिकंसिलिएशन सबसे इजीएस्ट वे और प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि हम लोग जाएंगे फिर देखेंगे ये रीजन है, ये हुआ या नहीं, जस्ट जाएंगे रिकंसिलिएशन के रीजन। पहले रिकंसिलिएशन किसे बोलते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे हमारा केस बुक पासबुक। कैसे कंपेयर करेंगे? 4 वे कंपेयरिंग हम लोग करेंगे, लाइक 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ये प्रैक्टिकल है, बट आपकी बुक से हिसाब से आपका 2 पार्ट है। लाइक जैसे बताऊंगा मैं आपको, रीजन चेक, डिपॉजिटेड नॉट पेमेंट, बैंक विड्रॉ, बैंक चार्जेस, ये सब आपका आएगा रिलेटेड बैंकिंग टर्म्स एंड आपका पर्सनल। जो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग चेक भेजें और वो पेमेंट ही नहीं, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक का कुछ फेलर है, पर हम लोग भेजा तो हम लोग को ये एज्यूम करेंगे कि हाँ भाई हमने पेमेंट कर दिया। पर बैंक की तरफ से हम देखेंगे हमारा बैंक अकाउंट उसमें पेमेंट नहीं हुआ है, उसमें कुछ गड़बड़ होता है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट चेक करेंगे तो हमारा वेरिएंस आएगा ही, उसका हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उसका हम लोग कैसे रिकंसिलिएशन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा सही है, रीजन के सब हम लोग उसमें फाइंड आउट करेंगे। उसका हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिल योर केस बुक विथ योर पासबुक इन ए सिस्टमेटिक मेथड। ओके, ये 4 हो गया। तो ये 2 पार्ट आपको सेक्शन बी में एक पार्ट आएगा, सेक्शन सी में एक पार्ट आएगा, बाकी सब आपका आएगा। सो ये सारा आपका जो है ये 35 मार्क्स का है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये उसमें आएगा, नहीं, ये सारा जो है 35 अंदर के आता है। बस मेरा सीक्वेंस ऑफ स्टडी जो है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा आपका स्पेशल ट्रांजेक्शंस। So स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो स्पेशल ट्रांजेक्शन में आपका क्या क्या आता है? अब ये है मेरा सेक्शन बी, ठीक है। आपका बुक का भी सेक्शन बी है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहला आपका आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर आपका दूसरा आएगा कंसाइनमेंट, ठीक है। फिर आपका तीसरा आएगा जॉइंट वेंचर। ओके, सो ये तीनों का तीनों स्पेशल ट्रांजेक्शन है। तो पहले बताता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है। ये ऐसा होता है कि हम लोग कैश ट्रांजेक्शन हिसाब से क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक कंपनी सोल्ड करेगा गुड्स, कंपनी ट्राई टू सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए बायर, सो he have to give like 3 months period to the buyer to pay the credit amount with 3 months. For that purpose, what the company do? The company issue one bills on behalf of the buyer and send the buyer to return that. See, this is your buying date, like we'll say purchasing date. ये आपका purchase date है। मैं आपके हिसाब से आपके ऊपर बिल रेज कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको इश्यू कर रहा हूँ, इतने द डेट है, आप ये डेट में मुझे वो पैसा देना है, उसके लिए मैं बिल देता हूँ। So once the company send the bill to the buyer accept the bill. How will you give the acceptance? You will give his written agreement, right? You sign the yes I agreed, I will pay you the due within the 3 months. Once the bill come to the company, that is a bills receivable. So हम लोग क्या बोलते हैं,
कि 3 महीने के बिल हमने उसको रेज किया है, ये हमारा रिसीवेबल क्यों बोलते हैं, अब तक हमको पैसा नहीं मिला है, बस बिल है, इसलिए हमको बोलते हैं द अमाउंट शुड बी कलेक्टेड इन द फ्यूचर पीरियड, नॉट फ्यूचर पीरियड विद इन 3 मंथ्स, इसलिए हम उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल नॉट रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, हमको ये मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग किसी से क्रेडिट से कुछ बाय करते हैं और उसको भी हम लोग टाइम मांगते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 1-2 महीने का टाइम दे, फिर मैं तेरा पैसा दे दूंगा 2 महीने में। तो वो उससे हम जो चाहिए वो परचेज कर दिए, फिर वो हमारे ऊपर एक बिल रेज किया, उसका हमने रिटर्न एग्रीमेंट दे दिया कि ये है, वो हमको दे दिया, बोल के बिल्स दो। ये एक बात यहाँ पर याद रखिए, दो जो भी मैं बताता हूँ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऐसा नहीं है कि बायर रेज करके हमको देगा और सेलर रेज करके, नहीं, दोनों का दोनों हम ही करेंगे, पर उसका वे ऑफ व्यू डिफरेंट। हाउ इज डिफरेंट? लाइक फर्स्ट केस we are selling the goods, the money should come to us, that's why we say bills receivable. Next case we are buying the goods, so it will say going to pay, we will liable to pay in future, that's why we saying bills payable. नेक्स्ट चीज जो आपका है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। ये दोनों क्या है? ऐसा बिजनेस है जैसे कि अब चलो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो मुझे ग्रो करना है, मैं ग्रो के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, तो सब स्टेट में मैं अपना बिजनेस चला चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कौन चाहिए, कोई ना कोई बंदा चाहिए जो मेरे गुड्स सेल कर सकते हैं, जिसको मैं कमीशन दे सकता हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने एक बंदे को रखा जो कि मेरा गुड्स जो है वो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट लेगा, वहीं पे वो सेल करेगा, वो जितना सेल किया उसको मैं कमीशन दूंगा उसके सेल के हिसाब से। उसी बिजनेस को बोलते हैं कंसाइनमेंट। ऐसा क्या होता है, इसको एक बोलते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉय। सो ये ऐसा होता है कि दो पार्टी होता है, जो कि हेड है, मतलब मैं हेड हूँ मेरा बिजनेस, तो मैं हूँ कंसाइनर, मैं जिसको देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट के लिए, वो लेके गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसको जितना सेल हुआ उस सेल के मैं उसको कमीशन दूंगा, उसको मैं बोलता हूँ कंसाइनी। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है, टू पार्टी इन्वॉल्व है, वन इज कंसाइनर एंड अदर वन इज कंसाइनी टू सोल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। मैं आपको ये बताऊंगा जब मैं क्लास में पूरा डिटेल बताऊंगा, इसका शुरू कैसे हुआ, क्यों इसको कंसल्ट बिजनेस कहते हैं और ये स्पेशल कंसल्टेटिव क्यों आता है, ये सारा डिटेल बताऊंगा। फिर नेक्स्ट चीज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कंसाइनमेंट टू जॉइंट वेंचर। Here there is an ongoing business, continue business. Joint venture, when both two parties will form an agreement for a particular project or particular contract, unless until the contract finish, they both are make a venture and invest the capital. You can say venture capitals also. I'll tell you the details how the joint venture started, what is the point of view starting the joint venture, main purpose of joint, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्लास लूंगा इन डिटेल में। अब ऐसा है, दोनों मिलकर अगर कुछ वेंचर स्टार्ट करते हैं पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो जो जितना इन्वेस्टमेंट किया और जो भी नाम दे उसको बोलते हैं एंड बी जॉइंट वेंचर। अब जो भी जॉइंट उन दोनों मिला के ये वाला आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है पार्टिकुलर प्रोजेक्ट ये रहे, उसके बाद इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है whether they both should continue the project or they will break up the project once ended of the project completed. That's called joint venture. और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तीनों आता है आपका कितने मार्क का, 20 मार्क का। ठीक है, ये तीनों आपका आता है 20 मार्क का। सो ये तीनों आपका आता है 20 मार्क। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने उसमें बोला था कि एक पार्ट है डेप्रिसिएशन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल ट्रांजेक्शन में, तो मैं उसको ऐड करता हूँ यहीं पे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं इसको एरर मार्क लेके लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें नहीं आता है, वो आता है सेक्शन ए में, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपका आता है सेक्शन ए से, पर मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में आपको, तो आपको इजी होगा। एक मतलब कैटेगराइज हो गया कि उन्होंने लिए कैटेगरी में आ गया, या पढ़ने को इजी होगा और इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो एक नोट कर सकते हैं।
हो गया। अभी लास्ट पार्ट में चलते हैं, जो मेरा आज का लास्ट क्लास है, और उसके बाद नहीं, मेरा लास्ट क्लास होने होगा, मैं आपको क्वेश्चन डिटेल भी दे दूंगा, फिर मेरा क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर चलो हम चलते हैं हमारा फाइनल अकाउंट के लिए, जो है 25 मार्क है। प्लीज कर दूं। ठीक है, सो हम लोग अभी जाएंगे हमारा अकाउंट्स का लास्ट पार्ट, जो है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसमें एक आएगा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। दूसरा आएगा फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अभी इसमें कौन सा हम लोग कवर करेंगे, इसमें कौन सा, इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और एक आएगा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों इसमें प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि प्रॉफिट ट्रेडिंग में हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट नेट प्लस, उसको लेकर हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। इन दोनों शीट में हमको पता चलेगा हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। बैलेंस शीट में हमको पता चल जाएगा हमारा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सॉरी, फिर हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका आएगा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे हमारे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर जो जितने डालेंगे उसमें से हम लोग निकालेंगे अपना सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है। ये मैं सोचता हूँ एक ही स्टेटमेंट है, हम ये प्रिपेयर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको नॉन प्रॉफिट क्यों कहते हैं, कौन सा नॉन प्रॉफिट में आ रहा है, और हम लोग कैसे लेंगे, और इसमें हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसका भी बैलेंस शीट आएगा। और एक बात, इसमें सबसे बढ़िया बात ये है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लिए, ये टॉपिक के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो जब भी मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा केयरफुली वो सब सुनना, क्योंकि बेसिक आपका सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप बेसिक स्ट्रांग हो गए, जैसे फाउंडेशन है ना, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, तो जितना भी ऊंचा जाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हमेशा फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक आपको चाहिए, जब रेवेन्यू का बेस में पढ़ाऊंगा वो टॉपिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो टॉपिक ठीक से समझ गया उसके लिए ये वाला जो है डेड इजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार लिख लीजिए, ये हमारा टोटल अकाउंट का 80 मार्क, ये आपका आएगा 25 मार्क। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ इसमें, ये मेरा पहला क्लास है। अभी मैं जब भी ये लिखता हूँ फंडामेंटल अकाउंटिंग, अभी क्लास आपको शुरू नहीं किया हूँ, इसलिए क्लास शुरू नहीं किया कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी क्लास में उसके पहले आपको एक आइडिया रहे कि हमारा टॉपिक क्या क्या है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, और एग्जाम के क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, प्रिपरेशन क्या होगा। क्योंकि बिफोर स्टार्टेड एनीथिंग प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई I make a plan study for you all the students, so that it will be easy for you and it will be clear plan in your mind, so that there is no bias whether you go for this or go that. No, we'll go as per this direction. And one more thing, if you want any suggestion, you can give me the suggestion directly, and I will happy to take the suggestions. Okay, and this is your accounts part, ये हो गया
फिर जो रहा 20 मार्क कॉस्टिंग का मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या आएगा, ठीक है। सो इरेज कर देता हूँ इसको। अभी हमारा है ठीक है। कॉस्टिंग जो है आपका 20 मार्क का है। तो 20 मार्क का क्या आता है, कॉस्टिंग में ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही आता है जो है इंट्रोडक्शन ले लेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग। दूसरा है जिसका हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। दूसरा आपका आएगा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ये दोनों मिलकर आपका आएगा 20 मार्क। सो एक चीज अब ध्यान में रखे, मैं ये हर रोज बोलूंगा, आज भी बताता हूँ, कभी फंडामेंटल जो फाउंडेशन आपको है अब इस समय पढ़ के मध्य सिर्फ एग्जाम पास होना है हमें। अगर ऐसे ही आपका मेथड रहेगा तो आप क्वालिफाई बहुत दिक्कत होगा। हमेशा एक चीज रख के चलिए कि हमको नॉलेज गेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वी टू गेन एज मच एज नॉलेज वी कैन। तो जब भी कॉस्टिंग 20 मार्क है, आप लगेगा 80 मार्क हम लोग अटेंड कर लेंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। क्यों कॉस्टिंग 20 मार्क पे हम पढ़ेंगे? नहीं, आपको दोनों पढ़ना है, क्योंकि यही कॉस्टिंग आपको आगे जाके काम आएगा जब आप इंटर में जाओगे। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, तो आपको आगे जाके काम आएगा। इसलिए ये भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 20 मार्क पे तो मैं मेरे इंट्रोड्यूस दे देता हूँ कॉस्टिंग का, ठीक है। अभी अकाउंट्स में क्या होता है, हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चलता है कि कंपनी में, वो हम लोग एज ए बेस्ड हम हिस्टोरिकल डाटा लेके हम लोग करते हैं। और कॉस्टिंग में हम लोग बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एक फिक्स कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे इम्पोर्टेंट दुनिया में क्या पता है, कॉस्ट। बिफोर हम जब सेल शुरू करते हैं हमको उसको प्राइसिंग फिक्स करना है। वो प्राइसिंग फिक्स कैसे होता है, एज ए बेस्ड ऑन कॉस्टिंग, उसी हिसाब से हमारा प्राइसिंग फिक्स होता है। हर कॉस्ट का पर यूनिट कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, हाउ कैन द प्रोडक्ट सेल द मार्केट, व्हाट इज द सेलिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड सेल इन द मार्केट विल कम, व्हाट इज योर बजट फॉर द प्रोडक्ट टू कम इन द न्यू टू द मार्केट, दैट विल डिसाइड एज ए बेस्ड ऑन कॉस्टिंग। हम लोग जब कॉस्टिंग करते हैं एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है। प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे होता है, जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा डायरेक्ट कॉस्ट कितना आता है, डायरेक्ट लेबर कितना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आता है, और उसके बाद फैक्ट्री में होगा तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आता है, फैक्ट्री के बाद हमारा आदमी स्टाफ काम करने उनको क्या आता है, उसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करेंगे मार्केट के लिए सेलिंग एक्सपेंस कितना आता है, और सेल के बाद हम लोग आफ्टर सेल सर्विस देते हैं ना, उसका एक्सपेंसेस क्या क्या आता है। हाँ, आपके माइंड में ये दिमाग होगा ये तो सेल है, फाइनेंशियल में सेल है, नहीं, वो डाटा जो होता है वो हिस्टोरिकल डाटा है। जो भी डाटा ऑलरेडी हमारे पास है हम उसी बेस पे लेके हमारा प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। कैसे आता है, एक न्यू, मैं ये बात कर रहा हूँ अभी कॉस्टिंग का, न्यू प्रोडक्ट के लिए जो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सब आपका आएगा। कॉस्टिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये सब आएगा इसमें। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट प्रिपरेशन मींस एक प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे करेंगे और क्या कॉस्ट आता है, कौन सी कॉस्ट में क्या क्या, सारा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। एक बात याद रखो, बहुत चांसेस है एग्जाम में इसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम आने का कॉस्ट शीट का। और एक बात, जब भी मैं आपको बोला एमसीक्यू में आपका ऐसा मेंटल मतलब को एमसीक्यू बस एक ही मार्क है, ये आपका बुक्स का कुछ किसी भी कोने में वो आंसर आपको बता सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका आंसर देना होगा। तो आपको इसीलिए आपको टिक एंड बिट एवरीथिंग यू शुड कवर before going to exam. Don't worry, once I completed this thing, we have a practice section for you. We'll give you as much a question for practice that we can provide you PDF also for you to practice the question. It will be easy and it will boost your confidence before you going to attend the exams. And one more thing, once I started the classes, if you have any doubt, anything in your mind, you can directly call me.
in my number. I can write it here. I can write it right. 6382 988 637. This is my number. You can call me at any time. So once if I am busy, I can call you and will call back to you. Any time you can call me in this number. And one more thing, जब भी मैं मेरा क्लास शुरू करूंगा, मैं आपको 7 क्लास हमारा ऐसा है 7 क्लास के बाद एक आपको लाइव सेशन मिलेगा, जिसमें आप सबका जितना भी डाउट है, जितने भी व्यूअर है, जितने स्टूडेंट है, सबका जितना भी डाउट्स है, हम उस लाइव क्लास में मैं आपका क्लैरिफिकेशन करूंगा. और each and every single doubt you can ask me, that even silly doubt also you can ask me, because this is your foundation only. If the foundation is strong, you will have bright future. So don't worry about the doubts. You can ask any kind of doubt, anything to me डायरेक्टली. ओके, सो आज का क्लास इतना है. नेक्स्ट क्लास जब होगा मैं आपका शुरू करूंगा बेसिस ऑफ अकाउंट से, उसमें मैं आपका बुक से हिसाब से फाउंडेशन में क्लास शुरू होगा. आज बस मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कौन सा एग्जाम में कितना पेपर आता है, कितना मार्क आता है, उसको मैं आपको दिया. बाकी सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू.